Kachi Sadak is a film primarily about entertainment. When a step is taken in somebody's life by a person or those around him for his betterment, उसकी भलाई के लिए, इंटेंशन अच्छा होता है लेकिन रिजल्ट कुछ वैसा नहीं निकलता और वो इंसान औरों की हुई गलती को सुधारने के लिए वापस एक खुशहाल जिंदगी को पाने के लिए क्या कीमतें जिंदगी को चुकाता है और कैसे उसे मंजिल मिलती है या नहीं मिलती है, किस हद तक मिलती है, जिंदगी कैसी है, कच्ची सड़क के जैसी है, तो ऐसी ये कहानी है. आई एम प्लेइंग वन कैरेक्टर हु इज basically negative, and he is a mafia don, liquor mafia don, and he's very influential, very powerful. But basically the story is about this boy who is not very close to the family because of circumstances. He's not treated well, and in the course of time when he starts his journey of life, then how he encounters different problems of life. So basically it's about his rough road, his journey, and I also become one of the obstacles. That's why it's called Kachi Sadak. निश्चित तौर पर नेगेटिव है और नेगेटिव उस तरीके से नहीं है कि डेलिबरेटली कोई चीज़ वो करता है. वैसा है वो श्यामलाल चरित्र ही वैसा है कि ऑलवेज कुछ ना कुछ उसके दिमाग में क्रूक चलता रहता है. इट्स नॉट ए वेरी बिग कैरेक्टर बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर ए फिल्म कि कैसे एक जिंदगी एक चरित्र की बदौलत बदल सकती है, एक बाप अपने बच्चे की जिंदगी कैसे बदल सकता है, भी वो चीज इसमें है. हम तो नौजवान पीढ़ी की पीठ थपथपाने आए हैं क्योंकि हमारा कनेक्शन हमेशा एक नए टैलेंट के साथ रहा है. इस मार्केट ड्रिवन एज में जहां पर बहुत सारा पैसा लगता है स्टार पावर पर, उसमें एक पैरेलल सोच ये भी होनी चाहिए कि जो न्यू कमर्स को encourage करे. Firstly, it's not a completely that character where I just come and do 2 songs and go away. ये ऐसा कैरेक्टर नहीं है जहाँ लड़की सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज की गई है. But in fact, I have very good scope to act, and I think the prerequisite of this particular character was that the girl should be able to act. क्योंकि everyone else in the movie is a fabulous actor, and it's my privilege that it took me in the character of Julie. Kachi Sadak means rough road, so it's a journey on rough road, and my characters are traveling on a rough road, and traveling on rough road is never easy. It's very difficult. बहुत मुश्किलात होती है. कच्ची सड़क टाइटल बहुत अच्छा है कि मुझे उम्मीद है कि कच्ची सड़क जो टाइटल जो फिल्म आएगी उसके बाद बॉम्बे की हर सड़क पक्की हो जाएगी. इट्स माय फर्स्ट मूवी, दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड इसीलिए शायद मैं थोड़ा नर्वस भी लग रहा हूँ बात करते समय. लेकिन इससे पहले मैंने सीरियल किए हैं. आई थिंक बेसिकली द रोल आई मीन इट वाज एन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट्स अ न्यू डायरेक्टर एंड एवरीथिंग अबाउट द फिल्म इज स्लाइटली न्यू. See, this film is not about the underworld. I'll tell you, the film has a lot of mini backdrops that the story travels through. You know, it's not against a certain backdrop. We've taken the smaller cities of India, we've taken their socio-political backdrop. I had not done such character before. So when Rahul asked me to do this role, and when he narrated the character, and my director, when he said that you really fit the role, I was quite excited because it was really an amazing character to do. There are lots of things which I had never done before. So as an actor, I always aspired to, do something which I had not done before. It's about a youth, और युवा वर्ग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का युवा वर्ग नहीं है. एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाला, एक निश्चित स्तर में रहने वाला वर्ग है, जहाँ पे लोग अनजाने में कहीं कुछ चीज़ पहुँच पाते हैं. और एक अनचाही चीज़ को पाने के लिए, वो अनचाही चीज़ प्यार भी हो सकता है, एक इमोशन भी हो सकता है, एक पिता का अधितत्व भी हो सकता है, एक माँ का प्रेम भी हो सकता है. उसके लिए जब वो स्ट्रगल करता है, उसके लिए संघर्षरत जब वो रहता है, वो नहीं पा पाता है, तो कैसी राहों पे वो गुजरता है. दैट्स द कच्ची सड़क. Well, I'm told that they have an exceptional song which is shot in the shrine of Ajmer Sharif, which is shot with Mithunda.
and I'm told that that's an exceptional song, and when Uttam is there, I am certain that we have a very good track. Rahul Singh is a very, very fine actor, and I have seen him earlier in Zubeda also, and this is the first time I think he'll be launched as a main lead actor. He's a very good actor. I think he's a very good personality more than anything else, which is lacking in our industry these days. उत्तम जी का म्यूजिक है, और उत्तम जी अपने अच्छे म्यूजिक के बारे में जाने जाते हैं. दिल तो पागल है, गदर, पिंजर, तीनों में 3 तरह का डिफरेंट म्यूजिक है. इस फिल्म में आपको चौथे तरह की इनकी डिफरेंट स्टाइल दिखेगी. और उत्तम सिंह जी का संगीत है इस फिल्म में. बहुत ही अच्छे गाने हैं इसमें. उन्होंने हमेशा से मुझे अच्छे गाने गवाए हैं. इसमें भी 2-3 गाने हैं मेरे. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को पसंद आएगा. राहुल सिंह जी का काम मैंने देखा था जुबेदा में, तब से मैं उनका मतलब फैन कह सकते हैं आप. और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उनके अलावा राहुल देव, मुकेश तिवारी, मधु, इन सब के साथ भी काम करने का अवसर मुझे मिला. कथा जो होती है वो मेनली भावनाओं की होती है, और बैकड्रॉप्स आपके बदलते रहते हैं जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिल्म कॉल्ड गाइड. यू सॉ गाइड, यू सी वेयर इट स्टार्ट्स, सी वेयर इट गोज एंड सी वेयर इट एंड्स. द स्टोरी इज मेनली अबाउट इमोशन. ऑल द बैकड्रॉप्स एंड ऑल दे सर्व एज, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा मसाला और व्हाटएवर. As a writer, see, Rahul is definitely very close to the ground reality. What I feel that, when people know about the ground realities, when they associate themselves with what exactly is being shown on the screen. राहुल के विषय में ये कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत अच्छा दर्शक भी है, और जब एक अच्छा दर्शक जब लिखता है तो निश्चित तौर पे बहुत ही परिपक्व राइटिंग आपके सामने आती है. देखिए, अमरीश पुरी साहब के बारे में हमने जब भी कुछ सोचा है तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है. उनकी आवाज़, उनके ह्यूमन ट्रेड्स, उनकी शरारतें, और कुछ लोग जाकर भी नहीं जाते हैं. और एक बहुत ही मीठी याद है इनकी इस फिल्म में उनके साथ जुड़ी हुई, तो हम उनको झुककर सलामी कर सकते हैं हमारे सीनियर से. Sanjay Singh is again a very good director. I would say that not because the way he shot the film so well, but because he used to give me feedback on my performance every day, before and after. And even if he thought that I was not perfect in a certain thing, he would go on shooting it without worrying about the footage or anything, till he thought I've got the take right. Adnan is a very good singer, everyone knows that. But Adnan has never sung a qawwali before. And in this film, he again, when he heard the tune, and he liked it. He liked the poetry, the lyrics, and he agreed to do it. मुझे तो लगता है कि फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म बनी होगी, क्योंकि टाइटल सुन के ही मुझे एहसास होता है कि फिल्म रियली अच्छी बनी होगी, और उन्होंने कुछ नई चीज़ें, नई बात खोजा होगा, और इसीलिए टाइटल भी कच्ची सड़क रखा है. तो एक मजेदार बातें तो हैं. This film is not absolutely as in rural. It has been shot in Jodhpur, but in the city itself. So it's like a semi-urban kind of a movie. तो जिस किस्म का इम्तिहान इस फिल्म में जो मोहब्बत का एंगल है उससे देना पड़ता है, वो बिल्कुल ताज़ा है. वो अभी तक किसी फिल्म में आया नहीं है. वो आप देख के ही जानिए. Sanjay Singh, the director, he is a perfectionist, I'm telling you. He has his own vision, and as a director, I always, respected him because of what he felt, because of what he had conceived. And he definitely saw to it that whatever his vision was, that really comes into reality. That's what he tried to do, and he did it.